Hallelujah. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the King of glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we bless your name. Lord, we praise your holy name. Lord, we exalt you. Lord, we bless you. Hallelujah. You are so wonderful, Lord. You are so kind. You are so glorious. Lord, we come into your presence through your shed blood. Hallelujah. तेरे पवित्र लहू के द्वारा हम तेरे चरणों में आते हैं. हालेलुया. धन्यवाद. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो. Lord, we thank you. We bless you, Lord. We praise your holy name. We praise your holy name. Holy name, Lord. We praise your holy name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise your holy name. Praise your holy name. Praise your holy name. Praise your holy name. Hallelujah. Lord, sanctify us by your word, for your word is truth. Sanctify us with the truth, Lord. Sanctify us with your spirit. Parakletos, Ruach HaKodesh. Lord, sanctify with Ruach HaKodesh. Hallelujah. Thank you, Lord. We give our lives into your hands, Lord. We place our whole being at the foot of the cross. Hallelujah. The soul cleansing blood of Messiah flow upon us. Hallelujah. Soul cleansing blood of Messiah flow. Soul cleansing blood of Messiah flow. Soul cleansing blood of Jesus of Nazareth. Hallelujah. तेरा धन्यवाद. तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो. Hallelujah. 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 तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं. हालेलुया. तेरे नाम की महिमा करते हैं. तेरे नाम की महिमा करते हैं. हालेलुया. तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा. तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा. तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा. हड्डियों में जहाँ जो न हो, यीशु का खून मांग ले. दर्द बयां जो न हो, यीशु का खून मांग ले. दिल को सकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले. जिंदा लहू, बहता लहू, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा. Thank you, Jesus. Lord, we come under the canopy of the blood. Lord, we come under the canopy, the hoopah of the blood, the sukkah of the blood, Lord, this evening. We come under that sukkah of the blood, the hoopah, Lord, that tabernacle of the blood of the Lamb. And Father, being your priest, I plead that precious blood over everyone that is connected via internet, and those who will connect later, and those who will watch later. Lord, I bind them all with the soul cleansing blood of the covenant, the precious blood of Jesus. Hallelujah. In Jesus' wonderful name I pray. Amen. Hallelujah.
आप सबको जय मसीह की। जैसे मैं पिछले दिनों में इज़राइल के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, उसे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इवनिंग में किसी और विषय पे किया करेंगे। इन द मॉर्निंग वील कंटिन्यू ऑन इज़राइल। तो अभी जो मैं मनन कर रहा था वचन जिसके ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी। ये बादल क्या हैं, या ये बादल कौन हैं? हालेलुया। जलाल का बादशाह बादलों पे आएगा। द क्लाउड्स, what are the clouds, or in the other way I put it more succinctly, who are the clouds? So we will explore into the word of the Lord who the clouds that the Bible mentions several places, both in the Old Testament and in the New Testament. Let's discover who the clouds are according to the word of the Lord. You know, we should never lay more emphasis or less emphasis. We should lay the exact emphasis that the Word of God lays on certain subjects. We also discover that there are certain subjects that are of higher importance, and there are certain subjects that are of bit lesser importance in the Word of the Lord. So we must always do justice as we do exegesis of the Word of the Lord. हालेलुया। तो हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 3 वचन में, मैथ्यूज 24:30, यीशु मसीह एक डेक्लरेशन करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, ये देखिए मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, मैथ्यूज 24 वर्स नंबर 30। लिसन टू दिस स्क्रिप्चर। एंड देन शैल अपीयर द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन इन हेवन, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Hallelujah. With power and great glory. Hallelujah. अभी एक और वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। ये जो साइन है इसके ऊपर we'll talk about this sign. The sign that shall appear in the sky is actually a sign that was, that appeared in the constellation on 23rd of September 2017. You can go on NASA's website, and even NASA confirmed this sign is talked about in Revelation chapter number 12. Very, very powerful celestial sign. I believe this was a marker that initiated the contraction period, if not necessarily the birth pangs. The contraction period began in the year 2017 on 23rd of September. आप इसे चेक कर सकते हैं, 23 सितंबर 2017। आपको YouTube पे भी वीडियो मिल जाएंगे। विर्गो की जो कॉन्स्टलेशन थी, उसके साथ लियो की कॉन्स्टलेशन, लियो के जो दूसरे 9 प्लैनेट्स प्लस 3 मोर प्लैनेट्स लियो के ऊपर आए और उन्होंने क्राउन बनाया विर्गो के ऊपर, और जुपिटर विर्गो की कोख में से बाहर निकला, और जब निकला तो नीचे ड्रैको कॉन्स्टलेशन, जिसे ड्रैगन बोलते हैं, वो आई उसको निगलने के लिए, बट जुपिटर वॉज टेकन अप। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस साइन से 23rd सितंबर 2017 को जो सेलेशियल साइन पैदा हुआ कि मून, सन जो था उसके राइट हैंड पे था विर्गो के, और मून पाँव के नीचे था, और 12 तारों का मुकुट था। लियो की कॉन्स्टलेशन राइट अबव द हेड थी, सर के ऊपर थी। तो अगर आप रिसर्च करेंगे, इससे 42 वीक्स पहले विर्गो को क्रॉस किया एक एस्टेरॉयड ने जिसका नाम है कंसेप्चुअस। बाइबल स्टार्स के अंदर यहोवा ने लिखी पहले, उसके बाद ये पृथ्वी पर उतरी। खैर अभी आज वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी। जलाल के बादलों के ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे, और मैं चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार भी आप निकालिए, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसका आप निकालिए 19 अध्याय
जॉन चैप्टर नंबर 19 एंड वर्स नंबर मैं आपको देता हूँ 37। तो क्या लिखा है यहाँ पे? 36 37 दोनों पढ़ता हूँ, बट मेन स्क्रिप्चर इज 37। For these things were done that the scripture should be fulfilled. A bone of him shall not be broken. Verse number 37. And again another scripture saith, they shall look on him whom they pierced. वो उसे देखेंगे जिसको उन्होंने पियर्स किया, जीसस क्राइस्ट को. This prophecy is taken from book of Zechariah. There are some people online today who don't know Hindi. They are from other nations, but there are some people who would not understand if I continue to talk in English. So I will have to excuse and apologize to them who cannot understand Hindi, but I'll have to choose Hindi so that majority of the people can understand what the Lord is trying to do the talking through me. Hallelujah. तो यहाँ पे लिखा है 37, and again another scripture saith they shall look on him whom they pierced. वो उसे देखेंगे जिसको उन्होंने क्या किया? पियर्स किया है, घाव दिए हैं. लेकिन ये स्क्रिप्चर पूरा नहीं है, आधा कोट किया है यहाँ पे यूहन्ना ने. पूरा स्क्रिप्चर है कि वो उसको देखें, उसके ज़ख्मों को देखेंगे जिनको उन्होंने घायल किया, और छाती पीटेंगे और उससे पूछेंगे ये घाव तुम्हें किसने दिए. आप पढ़िएगा ज़कराया चैप्टर नंबर 12 वर्सेस 1 to 10, पूरा पढ़िएगा. जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका था तो इन्होंने उससे ये नहीं पूछा है घाव तुझे किसने दिए हैं, बल्कि ये लोग देवर येलिंग, चिल्ला रहे थे और कह रहे थे इसे क्रूस पे चढ़ाओ, और उसका मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठे उड़ा रहे थे उसके. ये वचन अपने आप में पूरा नहीं हुआ जो यहाँ पे यूहन्ना 19:37 में लिखा है, जैसा ये जकरिया नबी की पुस्तक में लिखा गया. लेकिन अब वो फिर लौटेगा. हालेलुया. मैंने आपको ये शिक्षा दी थी, अगर आपको याद हो, ये 7-fold टीचिंग मनोरा के अंदर ही है. ये जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 है. बेरशित 12 एलोहिम एथ हशमाइम वा एथ हा अरेट्स. 7 लेटर्स, 7 वर्ड्स हैं जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में. इन 7 के अंदर 7 प्रकार की जो शिक्षा है, जो हानूक अपनी पुस्तक में लिखता है कि अंत के दिनों में धर्मियों को दी जाएगी. जशर ने अपनी पुस्तक में लिखा है ये 7-fold टीचिंग जो है ये अंत के दिनों में परमेश्वर के धर्मी लोगों को दी जाएगी. और वो ये भी लिखता है कि अंत के दिनों में एक बहुत दुष्ट पीढ़ी पृथ्वी पे आएगी. ये दिन जिसमें हम जी रहे हैं, ऐसी दुष्ट पीढ़ी आएगी जो यहोवा परमेश्वर के नाम को ब्लास्फेम करेगी. और आपको मालूम वो पीढ़ी इस समय पृथ्वी पे है, और वो पीढ़ी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी कर रही है. जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का राजा है उसकी प्रतीक्षा कर रही है, उसको राज्याभिषेक करेगी वो पीढ़ी, क्राउन करेगी, और उसके राज्य की तैयारी में वो पीढ़ी जुटी हुई है. आप उन्हें ग्लोबलिस्ट कहें, इलीट कहें, लेफ्ट कहें, आप उन्हें फ्री मैसनरी कहें, इल्यूमिनाटी कहें, आप उन्हें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहें, आप उन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं. वो सारे पृथ्वी के संगठन मिलकर इकट्ठा हो चुके हैं, और ये जो विशेष वायरस पृथ्वी पे स्टॉक कर रहा है, ये वायरस उसी की एक कड़ी है. तो मैं बता रहा था कि एक बड़ा सेलेशियल साइन 23 सितंबर 2017 को पूरा हो चुका है. हालेलुया. परमेश्वर नक्षत्रों के अंदर घोषणा करता है. यीशु मसीह की पैदाइश की घोषणा नक्षत्रों में की गई, कॉन्स्टलेशंस के अंदर. ये कॉन्स्टलेशंस, आकाश मंडल, ये यहोवा परमेश्वर के बिल बोर्ड हैं. ये हारबिंजर्स हैं पृथ्वी के ऊपर, जो आता है, जो पृथ्वी पे घटता है. इन्हें यहोवा परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं. 2 हिब्रू वर्ड हैं उत्पत्ति की पुस्तक 1:14 में. एक शब्द है ओथ, जिसका मतलब ये साइन होंगे, सूर्य, चांद और तारे साइन होंगे. पहला वर्ड है ओथ, साइन, और दूसरा हिब्रू वर्ड है मोआडीम. और जो परमेश्वर ने इसराइलियों को पर्व दिए मनाने के लिए, आपको मालूम गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये यहोवा ने नहीं दिए,
यहोवा ने जो इसराइलियों को पर्व दिए वो 23 अध्याय लेवी व्यवस्था में है, और परमेश्वर ने कोई नया रेफरेंडम लाके उन पर्वों को नलिफाई नहीं किया, वो अभी भी चल रहे हैं। वो ही 7 पर्व हैं इधर। मैंने आपको बताया बेरशित 12 एलोहिम एत। एत का मतलब जानते हैं आप क्या है? बाइबल पूरी में ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स के अंदर वर्ड आता है एथ। एथ का मतलब होता है अलफ ताब। हिब्रू का पहला अक्षर है अलफ, आखिरी अक्षर है ताब। अलफ ताब, मैं पहला और आखिरी हूँ। ग्रीक में उसे बोलते हैं अल्फ़ा एंड ओमेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का नाम है अलफ ताब। और बाइबल में 10,000 टाइम्स ये वर्ड आ रहा है, नियरली 10,000 टाइम्स, सिर्फ 39 बुक्स में। एथ, ये देखिए बेरशित 12 एलोहिम एथ। ये एथ कौन है? अलफ्ताब। ये एथ है जीसस ऑफ नैज़रेथ। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय का पहला वचन बता रहा हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय का पहले वचन में लिखा है बेरशित 12 एलोहिम एथ हशमाइम वा एथ हा अरेट्स। मैं हिब्रू में आपको फिर मैंने इस पर टीचिंग कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी करूँगा और नई टीचिंग्स। तो ये बेरशित 12 एलोहिम एथ हशमाइम वा एथ हा अरेट्स, ये जो 7 दीपक देख रहे हैं आप, 7 चिराग, ये 1,000 ईयर है। 1,000 1,000 1,000, ये 7 दिन हैं। एक दिन 1,000 साल के बराबर है। 6 दिन यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, मनुष्य को बनाया, छठे दिन 7वें दिन विश्राम किया। ये 7,000 ईयर की सारी स्टोरी है बाइबल के अंदर। तो देखिए बेरशित का मतलब होता है द बिगिनिंग। बेरशित 12 का मतलब क्रिएट करना। एलोहीम परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम है एलोहीम। आपको मालूम हिब्रू में एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक होता है जो एक वचन होता है वो सिंगुलर उसे बोलते हैं, जो बहुवचन होता है जिसे अंग्रेजी में हम प्लूरल बोलते हैं, लेकिन वो 2 को दिखाता है। हिब्रू में प्लूरल का मतलब होता है 2। हिब्रू में प्लूरल के बाद एक और होता है जिसका मतलब होता है मोर देन 2। सिंगुलर, प्लूरल का मतलब 2, और प्लूरल का मतलब 2 से ज़्यादा। सो परमेश्वर का नाम है एल इलोहा एलोहीम। एल इलोहा एलोहीम। एल यहोवा, एल नाम भी आता है। इलोहा जहाँ पिता और पुत्र आते हैं। एलोहीम का मतलब 2 से ज़्यादा। हालेलुया। सो बेरशित 12 बनाया एलोहीम ने, यहोवा ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने। बेरशित 12 एलोहीम एथ, ये जीसस ऑफ नैज़रेथ है। ये 1,000 साल, ये 2,000 साल, ये 3,000 साल, ये 4,000 साल। यीशु मसीह 4,000 साल, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसके 4,000 साल के बाद जीसस आता है। ये अलफ ताब है इसका नाम, अल्फ़ा और ओमेगा। उसके बाद बेरशित 12 एलोहीम एथ हशमाइम, ये है स्वर्ग। हशमाइम को बोलते हैं स्वर्ग। स्वर्ग के राज्य का प्रचार हो रहा है पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। अब यीशु मसीह फिर आएगा। कब आएगा? ये देखिए बेरशित 12 एलोहीम एथ हशमाइम वायत। वायत अलफ ताब के साथ वाब लग गया। आपको मालूम वाब क्या है? वाब कील का निशान है। वो अलफ ताब है लेकिन अब उसको कीलों के निशान लगे हुए हैं। किसे? यीशु मसीह को। अब वो कील के निशान के साथ आ रहा है 6th ईयर के एंड में और 7th ईयर के शुरू में। He is coming to take his bride home. Hallelujah. Bereshit 12 Elohim eth. He came without nails first time. Hashemayim Vaet. Again he is coming with the nail marks. तो उसके जो निशान हैं, the nail marks that he is carrying, Zechariah says, those who belong to him, the people of the household for whom he came, जिनके लिए वो आया, उसके अपने लोग, इसराइल का घराना, वो उसे पूछेंगे ये जख्म तेरे कैसे? देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें एक जलाली देह मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति अपंग होगा, उसका कोई अंग पूरा नहीं होगा, कटा हुआ, टेढ़ा या जैसा कहीं भी होगा, जब उसे जलाली देह मिलेगी उसे सर्वांग सिद्ध जलाली देह मिलेगी, संपूर्ण। लेकिन यीशु मसीह के विषय में देखिए,
यीशु मसीह ने हमारे मोक्ष के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए जो जख्म में घाव खाए हैं वो कभी मिटेंगे नहीं। जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ ईयर यीशु मसीह के शरीर में स्कार्स रहेंगे। देखते हैं यहोवा का ऐसा प्रेम। मैंने देखा हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस जब वो शादी करती हैं तो अपने पति का नाम टैटू करवा लेती हैं बॉडी पे, और 2 साल के बाद उसे तलाक देती हैं, टैटू निकलवा भी लेती हैं। यीशु मसीह ये टैटू निकलवाएगा नहीं। हालेलुया। इतने इटर्नल प्रेम से यीशु मसीह हमें प्यार करता है। हालेलुया। हाँ, तो वो अभी तो ये वचन पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस दिन होगा। कौन सा? आधा वचन है यूहन्ना 19:37 में, ये फिर मुकम्मल होगा। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से पढ़ना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार जल्दी से। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय का 30 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, वो टीचिंग मैं कर चुका हूँ, थोड़ी थोड़ी फिर करेंगे, लेकिन टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी। यहाँ पे लिखा, एंड देन शैल अपीयर द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन इन हेवन, एंड दे शैल ऑल द ट्राइब्स ऑफ द अर्थ मॉर्न, एंड दे शैल सी द सन ऑफ मैन कमिंग इन द क्लाउड्स ऑफ हेवन। उसे स्वर्ग के बादलों में आते हुए देखेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, स्वर्ग के बादल कौन है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्वर्ग का बादल क्या है, मैं पूछ रहा हूँ कौन है। तो पढ़िए एक वचन और, प्रकाशित वाक्य निकाल लीजिए जल्दी से। रेवलेशन चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 7। प्रकाशित वाक्य 1 का 7 पढ़िए मेरे साथ। देखिए, बिहोल्ड ही कमिथ विद क्लाउड्स। हालेलुया। देखो वो बादलों के साथ आ रहा है, एंड एवरी आई शैल सी हिम, हर आंख उसे देखेगी, एंड दे शैल ऑल्सो विच पियर्स्ड हिम, वो भी जिन्होंने उसे घाव दिए हैं, इज़राइल का घराना उसके अपने, एंड ऑल द किंड्रेड ऑफ द अर्थ शैल वेल बिकॉज ऑफ हिम, इवन सो आमेन। हालेलुया। वो फिर कैसे आ रहा है? लिखा है क्लाउड्स के साथ आ रहा है, बादलों पे आ रहा है। हालेलुया। अभी एक और वचन देना चाहता हूं आपको, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज। मत्ती रचित सुसमाचार निकाल लीजिए, मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय। प्लीज़ कोई बीच में सब स्क्रिप्चर को इंडिकेट करते जाएं ताकि सबको मिले ये स्क्रिप्चर। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में आपको मैं लेकर जाना चाहता हूँ। मत्ती 13 का 26 वचन प्लीज़ मार्क कीजिए, मत्ती 13:26। हालेलुया। सुनिए। हालेलुया। मत्ती 13:26 नहीं है प्लीज़, पहले आप पढ़ें। दैट्स अ रॉन्ग थिंग, रॉन्ग स्क्रिप्चर है। मार्क में चले, मरकुस की इंजील निकालें। मरकुस की इंजील 14 अध्याय, मरकुस का 14। मत्ती 13:26 को प्लीज़ अभी फ़िलहाल कैंसिल करें। आप मरकुस के 14 अध्याय के 62 वर्ष में आइए। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 62 वचन सुनिए। यीशु मसीह खुद कहते हैं, एंड जीसस सेड, आई एम एंड ई शैल सी द सन ऑफ मैन सिटिंग ऑन द राइट हैंड ऑफ पावर एंड कमिंग इन द क्लाउड्स ऑफ हेवन। हालेलुया। तो ये सारे हवाले जब आप देखते हो, यीशु मसीह 4 बार इंजीलों में कहते हैं क्लाउड्स ऑफ हेवन, क्लाउड्स बादलों के ऊपर, स्वर्ग के बादलों के ऊपर, और कुल मिला के 5 बार है न्यू टेस्टामेंट में। एक रेवलेशन में आ गया 1:7 में, और 4 बार यीशु मसीह अपने मुंह से कहते हैं बादलों के ऊपर, बादलों के ऊपर। हालेलुया। मैं आऊँगा। क्लाउड क्या चीज़ है? ये कौन है क्लाउड? अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट में देखते हैं ग्रीक में जाके, तो ग्रीक में क्लाउड के लिए वर्ड है निफलोन या निफोस, सिंगुलर निफोस, और जो प्लूरल है निफलोन। आप कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा नफलीमों के साथ।
दैट्स अ डिफरेंट वर्ड। और ये ग्रीक में है, नफलीम हिब्रू में है। तो ये उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, कहीं भी इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इटिमोलॉजिकली या थियोलॉजिकली, बोथ आर डिफरेंट। क्लाउड्स क्या चीज़ हैं, ये बादल क्या हैं? मैं एक स्क्रिप्चर आपको और देना चाहता हूँ, इब्रानियों की पत्री में चलें। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री जल्दी से निकालें और इसके 12 अध्याय में आ जाइए, प्लीज़ मार्क करें स्क्रिप्चर, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का पहला वचन। सुनिए आप क्या लिखता है इब्रानियों को लिखने वाला। वेयरफॉर सीइंग वी ऑल्सो आर कंपस्ड अबाउट विद सो ग्रेट अ क्लाउड ऑफ विटनेसेस। प्रेरित लिखता है, मैं विश्वास करता हूं प्रेरित पौलुस ने ये लिखा है इब्रानियों की पत्री। प्रेरित लिखता है कि देखो, जब हमें गवाहों के इतने बड़े बादलों ने घेरा है, बादल ने, बड़े बादल ने गवाहों के हमें घेरा हुआ है, फिर क्या कहता है, ले असाइड एवरी वेट एंड द सिन विच डोथ सो इजली बिसेट अस। हर एक वेट को, वजन को, भार को हटा दो, बाधा को दूर करो, और हर एक उस सिन को, मैंने आपको बताया था इनिक्विटी के विषय में, सिन दैट सो इजली बिसेट्स। आपके डीएनए में, जीनोम के अंदर आप जब ऑपरेट करते हो अपनी सेकंड नेचर से, डिफॉल्ट मोड में आके, इननेट प्रोपेंसिटी जो डीएनए के अंदर ड्वेल करती है बदकारी में गिराने वाली, वो कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, हर एक उलझाने वाली जो एंकल के साथ चेन बंधी उसे उतार के फेंको। और दूसरा कहता है जो अंदर से आपको डिफॉल्ट मोड पे इनिक्विटी लेके जाती है, आप पाप को कॉन्कर नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे पोर्नोग्राफी है, गंदी फिल्में देखना है, मोबाइल फ़ोन पे गंदी तस्वीरें देखना है, आप बार बार गिरते हो उस पाप में, अपने आप को फिर प्रभु के आगे जाते हो, दोषी फील करते हो, क्षमा मांगते हो, उपवास रखते हो, फिर अपने आप को प्रभु के चरणों में लाते हो, फिर आप सोचते हो कि आप जयवंत हो जाओगे, प्रभु के संग चलते हो, फिर कुछ हफ्ते के बाद फिर उसी पाप में गिरते हो। ये इनिक्विटी है, मैंने आपको बताया था। इनिक्विटी अवान हिब्रू वर्ड है, जो आपके अंदर से, जीनोम से, आपके डीएनए और आरएनए से आपको कंट्रोल करती है। उसके ऊपर कैसे विजयी होना है, इसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं जो हमने कुछ दिन पहले शिक्षा ली है, 3-4 दिन पहले। तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस, मैं पौलुस शब्द आता है क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ प्रेरित पौलुस ने लिखी है, हालांकि बहुत से स्कॉलर डिबेट करते हैं इसके ऊपर। तो प्रभु का जो दास इस पत्री को लिख रहा है, वो उसके एक बैकड्रॉप में लिख रहा है इस पत्री को। ओलंपिक की रेस चल रही है, वो ओलंपिक के एम्पी थिएटर के संदर्भ से इसे लिख रहा है। ओलंपिक के एम्पी थिएटर के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिवेटेड सीट के ऊपर लोग बैठे हुए हैं ऊपर, और बिल्कुल डग आउट टाइप है वो कोलिसियम, जहाँ पे नीचे लोग दौड़ रहे हैं। ऊपर अलग अलग रैंक के लोग हैं, अलग अलग चेयर्स ऐसे लगी हुई हैं, गोल है, सर्कुलर, उसके अंदर अलग, और नीचे लोग दौड़ते हैं, उनको वो लोग देखते हैं। रहा है कि ये गवाहों का बादल है जिसने हमें ऊपर से क्या किया हुआ है, घेरा हुआ। वो हमारी दौड़ को देख रहे हैं और वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें एनकरेजमेंट दे रहे हैं, इसलिए हम को बार बार गिराती है। नेचर, सेकंड नेचर से आवाज अपने अंदर रेस विद पेशेंस, पेशेंस के साथ ये दौड़ना है। ये स्प्रिंट नहीं है, ये 100 मीटर रेस नहीं है जीवन कि फड़फड़ा के दौड़े जल्दी से और बाद में फड़फड़ा के। मेरे भाई और बहनों, ये कंसिस्टेंटली आपको दौड़ना पड़ेगा, डेली प्रति दौड़ना पड़ेगा, हर दिन नया काम होगा इस रेस का। तो गवाहों का देख रहे हैं, प्रेरित पौलुस लिख रहा है, क्या है, बादल है। आप होंगे, मैंने के लिए तो आपको वर्ड बता दिया, निफ्लियोन या निफोस वर्ड है, लेकिन गवाहों का बादल, गवाह कौन? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रेरित कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। हमारी सामर्थ का स्रोत कौन है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सामर्थ के बगैर,
पवित्र आत्मा की कुदरत के बगैर कुछ भी मत कीजिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को वेट करने के लिए कहा। जब वो चेले जिनके ऊपर यीशु मसीह मार के ये बोला, उनको भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए, जो पंतेकुस्त के दिन था, आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके लिए उन्हें ठहरना था, वेट करनी थी। हमें कितना अधिक प्रतीक्षा की जरूरत है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जीवित रहना, पवित्र आत्मा पे निर्भर रहना। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा, पवित्र आत्मा आपको ज्ञान देगा, पवित्र आत्मा आपको प्रकाश देगा, पवित्र आत्मा स्वर्गीय ऊर्जा देगा, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ को नेविगेट करेगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा आपने अपने जीवन में कौन से फैसले लेने हैं, कैसे फैसले लेने हैं, आपके फाइनेंशियल, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके बेटियों की शादी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, आपने कोई बिजनेस करना है, रियल एस्टेट खरीदना है, आपने कहीं ट्रैवल करना है, आपने जीवन में कौन सा निर्णय लेना है। यीशु मसीह ने पैराक्लीटोस भेजा है, पैरा संग संग चलने वाला, यीशु मसीह जैसा पैराक्लीटोस, संग संग चल के कंफर्ट करने वाला, बिल्कुल यीशु मसीह के जैसा पवित्र आत्मा उसने भेजा है। उसके ऊपर हमारा जीवन आश्रित होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सामर्थ देगा। फिर पवित्र आत्मा क्या करेगा? वचन में लिखा, तब तुम मेरे गवाह होगे। कब? जब पवित्र आत्मा आएगा हमें कुव्वत से, तब हम यीशु मसीह के। आपको मालूम गवाह के लिए कौन सा शब्द है वहां पे? मार्टरोन या मार्टर अंग्रेजी में बोलेंगे। जैसे चेला मार्टर, तो हम उसे बोलेंगे वो यीशु मसीह का मतलब ये संभाला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता, प्रभु ने मेरा सर दर्द भी चंगा कर दिया, प्रभु ने हमको पैसे का जरूरत था वो भी दे दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। यही नहीं है कि आप चर्च के अंदर ऐसी गवाही, ये भी गवाही की वैल्यू है, लेकिन ये जो गवाही है, जीसस डिड नॉट से तुम गवाही दो, विटनेस, नॉट दैट यू शैल बी विटनेसिंग बट यू विल। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम टेस्टमनियां दोगे, तुम खुद टेस्टमनी बन जाओगे। तुम्हारी लाइफ एक टेस्टमनी होगी, एक मॉन्यूमेंटल टेस्टमनी जो पृथ्वी के लोगों से बातें करेगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारे काम, हालेलुया, पृथ्वी के लोगों से बातें करेंगे। ऐसा जीवन। और वर्ड है मार्टरोन, शहीद हो जाना। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 के 8 और 9 में आप पढ़ सकते हैं। मार्टरोन। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह में हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 1 अध्याय के 9 वचन में, नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ लोग बोल रहे हैं, एक सेकंड जरा होल्ड करेंगे प्लीज। नो नेटवर्क, 1 सेकेंड प्लीज। Hallelujah. Jesus. Please indicate if network is back, if you can see me and if you can hear me. Please shoot up a message. मैसेज लिखें अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। हालेलुया। अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है? हेलो, हालेलुया। डू यू स्टिल हैव नेटवर्क प्रॉब्लम? Richa is saying yes. Wait a second, let me move a little bit. Is it okay or still network problem? Hallelujah. There are interruptions. Can you see? अब सही है? Is it okay? Is it okay now? Okay, Brother Viral is saying it's better now. Okay, so I will continue. Hallelujah.
तो अगर आप देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 9, मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूँ ये स्क्रिप्चर, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 9। हालेलुया, हालेलुया। एक्ट्स 1 वर्स नंबर 9 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। नाउ ओके, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। सुनिए, प्रेरितों के काम 1 का 9। And when he had spoken these things while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. जब यहाँ पे लिखा है वो उनसे बातें कर रहा था और उनसे ये बातें कहीं, तो देखो वो उसे एक क्लाउड ने रिसीव किया। यहाँ पे क्लाउड के लिए जो ग्रीक ग्रामर में वर्ड है, दैट इज यूज फॉर अ पर्सनल प्रोनाउन। इट्स नॉट यूज फॉर समथिंग इनएनिमेट, इट्स समथिंग यूज फॉर लाइक लिविंग एंटिटी। ये क्लाउड कौन है? क्लाउड कौन है ये? हालेलुया। ये क्लाउड ऑफ विटनेसेस हम देख रहे हैं। ये निफलियोन्स या निफोस कौन है? अब हम पढ़ते हैं, आप मार्क कर लें, मत्ती रची सुसमाचार 27 अध्याय के 52 और 53 वर्स को। मत्ती 27 के 52-53। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरे, अद्भुत बातें, 7 अलौकिक बातें घटी जब क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। वचन में उनमें 7 में से एक खास बात यह है कि यरूशलेम में कब्रें फट गईं और उन कब्रों में से संत पुराने नियम के बाहर निकल आए। हालेलुया। और वो बहुत सारे लोगों को दिखाई भी दिए। हालेलुया। बहुत सारे संत, वचन में लिखा यरूशलेम की सड़कों में लोगों को दिखाई दिए। जब प्रभु यीशु मसीह अनंत आत्मा से पताल की ओर गया, सारे जो बंधुए थे वहाँ पे इब्राहिम की बूज़म में, वो कब्रें खुली और वो बाहर निकल आए और यरूशलेम में लोगों को दिखाई दिए। लेकिन पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 20 वचन जब आप पढ़ेंगे, उनको अभी जलाली शरीर नहीं मिल सकता, स्वर्गीय अलौकिक पारलौकिक देह अभी नहीं मिल सकती उन संतों को पुराने नियम के, जो मत्ती 27 52-53 में जी उठे प्रभु यीशु मसीह की मौत के बाद। जब अनंत आत्मा में यीशु मसीह नीचे गया, देख यीशु मसीह के पताल में आगमन से ही वो आज़ाद हो गए। हालेलुया। वो बाहर तो आ गए, लेकिन अभी उन्हें जलाली शरीर इसलिए नहीं मिला क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15 का 20 कहता है कि यीशु मसीह को पहला फल बनना है। जो सोए हैं उनमें से जाग उठने वाला पहला फल मसीह होगा। इसलिए जब मसीह पताल में नीचे गया और मसीह तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा, तो ये जो संत थे, ये मत्ती 27 52-53 वाले, जो गवाहों का ये बादल है, हालेलुया, इनको भी जलाली देह मिली। ये मैं बिलीव करता हूं ऐसा। और ये जो क्लाउड है जिसने यीशु मसीह को रिसीव किया, ये इन गवाहों का बादल है। हालेलुया। ये स्क्रिप्चर, हालांकि स्क्रिप्चर में बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं है कि इस बात को हम डॉक्ट्रिनली या डॉगमेटिकली प्रूव करें, लेकिन ये स्क्रिप्चर यही सेंस बताते हैं कि ये जो मुर्दों में से जी उठे, इनको जलाली शरीर तब मिला जब पहला फल, पहला पूला यीशु मसीह बन गया। उसके बाद ये क्लाउड के संग यीशु मसीह, ये क्लाउड कौन है? ये कामिल किए हुए संत हैं परमेश्वर के, जलाल में रहने वाले संत हैं खुदा के। ये फरिश्तों का झुंड नहीं है, स्वर्गदूतों का टोला नहीं है, ये कामिल संतों का झुंड है। उसने यीशु मसीह को रिसीव किया जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और वचन में लिखा है 40 दिन 40 रात यीशु मसीह अपने चेलों को अपीयर होता रहा। 10 अपीयरेंस हैं यीशु मसीह की, 10 अलग अलग जगह यीशु मसीह अपीयर हुआ मुर्दों में से जी उठने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, यहाँ से एक फॉल्स टीचिंग है वेटिकन ने बनाई, रोमन कैथोलिसिज्म और कई ऑर्थोडॉक्स लोगों ने यहीं से एक झूठी शिक्षा बनाई है। वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह अब जब दोबारा आएगा, उस आगमन से पहले 10 बार वो अपीयर होगा, फातिमा की अपीयरेंस और कई ऐसी बातें हैं जो फॉल्स टीचिंग लोगों ने संग में जोड़ रखी है इसके साथ। हालेलुया।
लेकिन वचन ऐसी किसी भी चीज़ को तस्दीक नहीं करता। आपको मालूम रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर एक बड़ी खतरनाक शिक्षा है प्रभु भोज की, वो उसे ट्रांससब्सटेंशिएशन बोलते हैं। प्रीस्ट रोटी और वाइन को लेता है, पर्दे के पीछे जाता है और कुछ तरह की लैटिन के अंदर चांटिंग करता है और फाइनली कहता है हरकोस कॉर्पस मेहम, हरकोस कॉर्पस मेहम का मतलब कि जीसस क्राइस्ट फिर रिटर्न कर रहा है इस होली कम्युनियन में। They say Jesus is coming back now in this Holy Communion. The very bread is actually turning into the body and the very wine is actually turning into the blood, which is a heretical teaching. क्योंकि पहले वो उसकी डेथ को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसकी रेजरेक्शन को डिक्लेयर करते हैं। हर बार जब प्रभु भोज होता है यीशु मसीह मरता है, फिर यीशु मसीह जी उठता है। वचन में लिखा है उसे वो युगों के अंत में एक बार इसलिए प्रकट हुआ कि एक ही बलिदान के द्वारा, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 25-26 वचन को पढ़िएगा, अंत में युगों के इसलिए आया कि एक ही कुर्बानी के द्वारा पूरे ब्रह्मांड के पाप को उठा के ले जाए, वरना उसे सृष्टि के मूल से लेके बार बार दुख भोगना पड़ता। तो ये जो शिक्षा है हरकोस कॉर्पस मेहम कि ये दोबारा ट्रांससब्सटेंशिएशन हो गया, ये गलत शिक्षा है। यीशु मसीह कहता है मेरी मौत की याद में ये किया करो। अरमिक में यीशु मसीह ने ये कहा तो शथुल जिक्रोन, तो शथुल जिक्रोन, मेरी याद में ये किया करो। ये सैक्रामेंट कैनिबलिज्म नहीं है, वो बार बार नहीं मरता है। हालेलुया। तो यही शिक्षा आगे चल के ये बनती है कि 10 टाइम्स वो फिर अपीयर होगा। तो आपको मालूम जब स्टीफन को, जो पहला शहीद है कलीसिया का, मार्टर है, असल में विटनेस है, गवाह है, गवाह का मतलब होता है शहीद हो जाना, मार्टर, मार्टरोन, मार्टरियोन ग्रीक वर्ड है। तो उसको पत्थर मार मार के जूइश लोग मारते हैं। 7 अध्याय प्रेरितों का काम ज़रूर पढ़िएगा। वो यहूदी लोगों को जब आईना दिखाता है उनके जीवन का, तब वो उसे मार देते हैं। आज भी जो प्रभु का सच्चा बंदा आईना दिखाता है ना नामधारी ईसाइयों को, वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने एक अपना सच्चा बंदा खड़ा किया जो सच्चे पैगाम से हमें अपनी शक्ल दिखाता है। वो पत्थर मार मार के उसे मार। मैंने आज आपको बताया था कि प्रभु ने खुद कहा जकरिया को, जैसे उसको जगवेदियों में मारा, वैसे किसने? जोसाया जैसे धर्मी राजा के लोगों ने। वैसे ये लाजमी है कि मेरा भी ब्लड यरूशलेम में ही क्या किया जाए, पोर आउट किया जाए, पंजाबी में डोला जाए, हिंदी वर्ड नहीं मुझे आ रहा। तो स्टीफन क्या देखता है, क्या कहता है जब उसे मार देते हैं, वो मरने वाला होता है, वो कहता है मैं स्वर्ग को खुले हुए देख रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ? यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर के राइट हैंड पे खड़े देख रहा हूँ। यीशु मसीह हमेशा बैठे हुए हैं, मैंने आपको बताया याद है आपको जकराया चैप्टर नंबर 3 में वो खड़ा होकर दोष लगाता है, लेकिन यीशु मसीह राइट हैंड पे बैठे हैं। वो हाई प्रीस्ट हैं यीशु मसीह, उन्हें खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। योम किपुर के दिन जो भी हाई प्रीस्ट जाता था अति पवित्र स्थान में, वो खड़ा होकर आराधना करता था और बेल लगी होती थी उसकी पोशाक को, वो घंटियाँ बजती थी, लोगों को पता लगता था कि हमारा महायाजक जिंदा है। उसे यहोवा परमेश्वर के तेज ने जो यहाँ विराजमान है उसने मारा नहीं है। वो घुंघरू घंटियों की आवाज़ आती है, टन 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 टन, जैसे अन्य भाषा हम बोलते हैं, इस तरह उसका सिंबल है वो जो आवाज़ आती थी। वो खड़ा होकर उपासना करता है, लेकिन यीशु मसीह बैठा है। पर जब यीशु मसीह का गवाह यीशु मसीह के लिए शहीद होकर उसके पास जा रहा है, यीशु मसीह राइट हैंड से खड़ा होता है। किस लिए? अपने बेटे को वेलकम करने के लिए। आपको मालूम राइट हैंड का मतलब क्या होता है? राइट हैंड का मतलब होता है प्लेस ऑफ अथॉरिटी एंड इनहेरिटेंस। राइट हैंड पे जो हैं उन्हें अथॉरिटी भी मिलेगी स्वर्ग में और इनहेरिटेंस भी मिलेगा, मिरास भी मिलेगी। हालेलुया। लेफ्ट हैंड वाले बदरुए हैं, उनकी कोई मिरास नहीं है। राइट हैंड पे होली एंजल्स हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि ये क्या लिखा है कि कम्स विद क्लाउड, मार्टरोन्स, मार्टरोन, यहोवा का गवाह, यहोवा का विटनेस। अब मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं, जल्दी से पढ़ें।
मुझे नहीं मालूम कि ये शिक्षा मैं ख़त्म कर पाऊंगा आज या नहीं। डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय जल्दी से निकालें। दानियल नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 13 वचन निकाल लीजिए। दानियल 7 का 13। डैनियल चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 13। डैनियल 7:13। प्लीज़ लुक एट द स्क्रिप्चर केयरफुली। दानियल 7 का 13 यहाँ लिखा है सुनिए। I saw in the night visions, and behold, one like Son of Man came with the clouds of heaven. दानियल क्या देख रहा है कि मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई है। दानियल यीशु मसीह से 750 साल पहले यीशु मसीह को देख रहा है। वो कैसा लग रहा है? सन ऑफ मैन। लेकिन अभी उसने ह्यूमैनिटी पहनी भी नहीं है, अभी वो मरियम की कोख में आया भी नहीं है इंसान बन के। लेकिन दानियल उसे कैसे देख रहा है? ही लुक्ड लाइक सन ऑफ मैन। ही इज इटर्नल सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। उसी की कॉपी पे हमें बनाया यहोवा परमेश्वर ने। इटर्नली एग्जिस्टेड, ही इज अनक्रिएटेड सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। वो सन ऑफ मैन, अभी तो मैन, जब डैनियल ये दर्शन देख रहा है अभी वो सन ऑफ मैन नहीं है, क्योंकि अभी 750 साल बाद उसका जन्म होना मरियम की कोख में। लेकिन वो देखता सन ऑफ मैन केम विद द क्लाउड्स ऑफ हेवन। स्वर्ग के बादल, स्वर्ग के बादल, हालेलुया। स्वर्गीय संतों की टोली के साथ यीशु मसीह गवाहों के बादल, ये हेवनली विटनेसेस हैं, कामिल संत हैं पहले के। हालेलुया। क्योंकि वो सन ऑफ मैन है, इसलिए सॉवरेनिटी ऑफ गॉड में इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। द चर्च, कामिल संतों की कलीसिया, पहलौठों की कलीसिया और संतों की टोली, ये है क्लाउड ऑफ हेवन। क्लाउड ऑफ हेवन, आपको मालूम, यहाँ पे क्लाउड के लिए जो वर्ड है, आप हैरान होंगे कि यहाँ पे अगर आप मैसोरेटिक टेक्स्ट भी पढ़ेंगे या आप कुमरान स्क्रोल्स पढ़ेंगे, ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट की अगर आप अध्ययन करेंगे, ये जो वर्ड है क्लाउड, यहाँ पे आपको हिब्रू में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा एरामिक में, अरामी भाषा में। सारे ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट के अंदर अरामी में, इसको हिब्रू में नहीं बल्कि एरामिक जो एक डायलेक्ट है हिब्रू का ही, उसमें ये वर्ड है एनान, जिसका डेफिनेट मीनिंग किसी स्कॉलर को अभी तक मालूम नहीं है, एक्सेप्ट दे कॉल इट क्लाउड। हालेलुया। तो अब मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ और इसका, डैनियल की पुस्तक उसका 7 का 18 वचन सुनिए। 7 का 18। बट द सेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई शैल टेक द किंगडम एंड पोजेस द किंगडम फॉर एवर, इवन फॉर एवर एंड एवर। डैनियल की पुस्तक में क्या दर्शन देखा जा रहा है? ये रेवलेशन चैप्टर नंबर 11, 12, 13 के बाद की बात है। दानियल दर्शन देखता है कि परमेश्वर के संत क्या करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? हालेलुया। बट द सेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई शैल टेक द किंगडम एंड पोजेस द किंगडम फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। परमेश्वर के संत डोमिनियन, आपको मालूम, एक फॉल्स थियोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स से चली, लास्ट 2 डेकेड्स में बहुत डेवलप हुई, मिड वेस्ट में हुई, कॉल्ड डोमिनियन थियोलॉजी। वो थियोलॉजी ये सिखाती है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले हम पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनियन होगी हमारी। 7 माउंटेन के ऊपर कैसे डोमिनियन, मैंने बहुत से प्रीचर को देखा, दे गॉट कैरीड अवे, दे गॉट स्वेड विद इन लास्ट 20 years एज आई ट्रेवल्ड वर्ल्ड वाइड, बट इट नेवर रैंग द बेल इन माई हार्ट। मुझे ये लगा कि ये टीचिंग इसके साथ मेल नहीं खाती। डोमिनियन थियोलॉजी क्या सिखाती है कि 7 माउंटेन के ऊपर हमने कब्जा करना है। इकोनॉमी के ऊपर क्रिश्चियनों का कब्जा हो, पॉलिटिक्स के ऊपर क्रिश्चियनों का कब्जा हो, जर्नलिज्म एंड मीडिया के ऊपर क्रिश्चियन लोगों का कब्जा हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे क्रिश्चियन लोगों का कब्जा हो, एजुकेशनल सिस्टम पे क्रिश्चियन लोगों का कब्जा हो, 7 जो इम्पोर्टेंट मार्केटिंग एंड बिजनेस वर्ल्ड के ऊपर, तो ये इसके ऊपर डोमिनियन हो हमारी। वचन बताता है ये डोमिनियन अब नहीं होगी कलीसिया की।
ये डोमिनियन होगी इस समय जो दानियल नबी ये दर्शन देखता है। आपको मालूम डोमिनियन थियोलॉजी से मूवमेंट निकली, कई एपोस्टोलिक रेफर्मेशन निकली है कैलिफोर्निया से, और रेस्टोरेशन मूवमेंट निकली, कई फॉल्स फ्लैग्स खड़े किए गए अमेरिका में, फॉल्स फ्लैग की रिवाइवल आ गया, किस कई प्रकार का सूडो रिवाइवल, मैन मैन्युफैक्चर्ड रिवाइवल। मनुष्य कभी रिवाइवल को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, मनुष्य सिर्फ यहोवा के चरणों में बिछ सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, पुकार सकता है, यहोवा से याचना कर सकता है, एक फायर भेजें हमारे अंदर, एक आग जले हमारे अंदर कि प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करें। रिवाइवल यहोवा का सॉवरेन मूव होता है, वरना आप फॉल्स फ्लैग खड़े करेंगे। कई लोग तो कहते हैं वी आर द रिवाइवल, पता कोई अंत नहीं है, कई कैची स्लोगन लोग यूज़ करते रहते हैं और उन कैची स्लोगन के पीछे लोग भागते हैं, ये कलाम की जड़ें नहीं जानते कि कलाम क्या कहता है। हर एक कैची चीज़, हर एक कैची जुमला अगर कलाम से मेल नहीं खाता भाई और बहनों, तो वो सिर्फ एक जुमला है। हालेलुया। आपको मालूम, एक वचन मैं आपको देना चाहता हूँ, जल्दी से आएँ यशायाह नबी की पुस्तक में, यशायाह नबी की पुस्तक, और उसका हम पढ़ेंगे 44 चैप्टर में आए पहले। यशायाह नबी की पुस्तक 44 चैप्टर निकाल लीजिए, प्लीज़ इंडिकेट कर दीजिए, मार्क कीजिए। यशायाह 44, उसका मैं 3rd वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिए। 3rd, I will pour water upon him that is thirsty, and flood upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring. हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं पानी की तरह मेह बरसाऊंगा तुम्हारे ऊपर। बाइबल में बारिश, मेह, पवित्र आत्मा का प्रतीक है, पवित्र आत्मा की आमद को वर्षा दिखाती है। और आप अगर पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, लेटर रेन एंड द फॉर्मर रेन के विषय में लिखा है। एक पहली बारिश जब बीज बो दिया जाता है और ब्लेड निकलते हैं, तो शुरू में एक पहली बारिश आती है। फिर जब फसल तैयार होने लगती है, कटाई से थोड़ा पहले लेटर रेन आती है। फर्स्ट पेंटेकॉस्ट एंड द लास्ट पेंटेकॉस्ट, एक पेंटेकॉस्ट हुआ, एक लास्ट पेंटेकॉस्ट होने वाला, फॉर्मर एंड द लेटर रेन। आपको मालूम इसे हिब्रू भाषा में लिविंग वाटर, यीशु मसीह लिविंग वाटर कहते हैं, लिविंग वाटर। यूहन्ना 7:37-38 को अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं जो प्यासा हो मुझसे आकर पिए, जो जल मैं उसे दूंगा उसे पी के उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। नदियां, एक नदी नहीं, प्लूरल, मल्टीपल नदियां फूट निकलेंगी। और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की बात कर रहा था। हालेलुया। किसकी बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह? पोरिंग आउट ऑफ द होली स्पिरिट, लिविंग वाटर। मे मायम हिब्रू वर्ड है, द लिविंग वाटर, स्टैग्नेंट पानी नहीं। आपको मालूम प्रभु यहोवा क्या कहता है? प्रभु यहोवा कहता है मैं जिंदा पानी का सोता हूँ, जिंदा लिविंग फाउंटेन हूँ मैं। और जिर्मिया नबी के वसीला से जिर्मिया 2:13 वचन में प्रभु कहता है मेरी प्रजा ने 2 बड़े पाप किए हैं, उन्होंने मुझे त्यागा है, मैं जो जीवन का जिंदा जल का सोता हूँ, चश्मा हूँ, दरिया हूँ जिंदगी का, मुझे त्याग दिया है। मेरी प्रजा ने मुझे निकाल दिया, मुझे त्याग दिया, अपना यहूदी धर्म बना लिया है। और यहूदी धर्म क्या है कि उन्होंने हौद बना लिए हैं अपने लिए। ऐसे हौद हैं जो टूटे हैं, जिनके अंदर लिविंग पानी नहीं है, स्टैग्नेंट पानी है। आपको मालूम बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से वचन को, बपतिस्मा हमेशा बहते पानी में होता है, लिविंग वाटर में। इसके ऊपर कभी टीचिंग करेंगे। लेकिन जो हिब्रू वर्ड है मिकवा, इसकी रूट्स देखेंगे कभी हम। मिकवा कैसे करते थे? हौद बनाते थे, ऐसे जैसे हमारे पंजाब में उसे बौली बोलते हैं। ऐसे जगह बनी है, नीचे उतर के जाना आपने, वहाँ पानी है, लेकिन वो जो बना है ना, हौद बना है, वो पानी के दरिया के ऊपर बना है। वो हौद बना के बीच में पानी डाला नहीं गया है, उसमें पानी चला रहता है, वहाँ पे मिकवा होता था, जिसका मतलब यह है लिविंग वाटर में नहाना,
जिंदा पानी के चश्मे में क्या करना? स्नान करना। हालेलुया। आपको मालूम, अगर हम यशाया नबी की पुस्तक और उसके 14 अध्याय में चलें, मुझे लगता नहीं कि हम सब्जेक्ट ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन जितना अभी प्रभु हमें देते हैं हम सीखते हैं। चलिए मेरे साथ यशाया नबी की पुस्तक 14 अध्याय के 14 वचन में। हालेलुया। देखिए, ये करूब है, एक करूबीन, जिसका नाम है हीलियल, हिब्रू में हीलियल, HELIEL। एल की रोशनी लेके जाने वाला, यहोवा की रोशनी लेके जाने वाला। तो वल्गेट ट्रांसलेशन में रोमन कैथोलिक चर्च ने हीलियल शब्द हटा के उसे लूसीफर कर दिया, लुसेफरोस। उसका मतलब भी बेसिकली वही है, रोशनी का कैरियर, रोशनी को लेके जाने वाला। वो क्या कहता है 14 वचन में? आई विल असेंड अबव द हाइट्स ऑफ द क्लाउड्स। आई विल असेंड अबव द हाइट्स ऑफ द क्लाउड्स। जो बादलों की बुलंदियां हैं उनसे भी मैं ऊंचा जाऊंगा। आई विल बी लाइक मोस्ट हाई। मैं एलिलियोन की तरह। एलिलियोन कौन है? स्पिरिट वर्ल्ड में सबका बॉस जो है वो एलिलियोन है। हालेलुया। जिसका नाम है योधेवावे, यहोवा परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर, सृष्टि का स्वामी, आकाश मंडल को रचने वाला। हालेलुया। ये दुनिया मल्टीवर्स है, इस मल्टी डिमेंशनल मल्टीवर्स वर्ल्ड को क्रिएट करने वाला यहोवा वो जहां विराजमान है। कहां पे? क्लाउड्स की, बादलों की हाइट के ऊपर है। ये बादल नहीं है, समझ रहे हैं आप? कौन से बादल? ये जो आप बादल देखते हो, ये वो बादल नहीं है। हालेलुया। ये बादल कौन है? ये यहोवा के संत हैं। हालेलुया। उन बादलों से मैं, क्या लिखा है, पार हो जाऊंगा। ही वॉन्टेड टू बी वर्शिप्ड इन शमाइम। शमाइम का मतलब स्वर्गों का स्वर्ग, ग्रीक वर्ड है ओरेनस, अबव द क्लाउड। क्लाउड के ऊपर जाना चाहता था। कौन सी जगह को यूजर्प करना चाहता है? अबव द क्लाउड। हालेलुया। अबव द क्लाउड। ये विटनेसेस हैं गॉड ऑफ इज़राइल के, ये होली सेंट्स हैं, यहोवा परमेश्वर के संत हैं, ये फेथफुल चर्च है, होली क्लाउड्स। इनके अबव जाना चाहता है एंटी क्राइस्ट। वो जगह उसको उसने डिजायर किया। और आप पढ़िएगा रेवलेशन चैप्टर नंबर 11, 12, 13। एक दिन समय आ रहा है, बल्कि आ चुका है, जब अपनी ये हसरत लूसीफर पूरी करेगा उस टेंपल के अंदर जो अभी जल्दी बिल्ड हो जाएगा। हालेलुया। वो 3rd या 4th टेंपल हम कह सकते हैं सुलेमान का। उसके बाद सुलेमान के बाद एजरा नेहेमिया ज़रूब्बाबेल का, उसके बाद हेरोदेस का। अब ये जो टेंपल दोबारा बिल्ट होगा, इसके अंदर वो अपनी इसी हसरत को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। कौन? जिसके विषय में 14 अध्याय में लिखा है, बादलों के पार। हालेलुया। हालेलुया। और वो क्या करेगा? उसके लिए क्या करेगा? एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया निज़ाम पैदा करेगा, एक नया सिस्टम, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट खड़ी करेगा। एक दुनिया पूरी का एक निज़ाम, एक सिस्टम, एक करेंसी, एक यूनिवर्सल पॉलिटिकल संगठन, एक यूनिवर्सल इकोनॉमिकल संगठन, एक यूनिवर्सल रिलीजन, धर्म। हालेलुया। पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड इकोनॉमी तीनों को ब्लेंड कर देगा। इतना चतुर जबरदस्त लीडर आने वाला है। जैसे ये पेंडेमिक आया है, फियर है पूरी दुनिया के अंदर, पता नहीं कल क्या होगा कैसे होगा। वैक्सीनेशन आएगी, वैक्सीनेशन, आपको मालूम जो वैक्सीनेशन आ रही है उसके अंदर एक एलिमेंट है जो डाला गया है, उसके अंदर एक ट्रैकिंग पार्टिकल है डिजिटल, और जो एलिमेंट डाला गया है उसका जो नाम है लुसिफरोस है। मैं आने वाले समय में उसके ऊपर शिक्षा टीचिंग करेंगे हम, जो इधर यहाँ पे डालेंगे या इधर डालेंगे,
वन वर्ल्ड, एक दुनिया की सरकार, एक दुनिया का राजा, एक दुनिया की करेंसी, एक दुनिया का पूरा खरीदो फरोख्त का सिस्टम, एक दुनिया का धर्म, और उसके लिए झूठी कलीसिया, अपोस्टेट चर्च, वैटिकन झूठी चर्च, रबिनिकल जूडाइज्म और इस्लाम, क्रिस्लाम और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, वैटिकन, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेज, अपोस्टेट इवेंजेलिकल चर्च, ये सभी संगठन ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट तैयार की जाए जिसमें वो आके रूल करे। कहाँ? बादलों के ऊपर, अबव द क्लाउड्स। हालेलुया। अब मैं एक वचन आपको और देना चाहता हूं और उसके बाद हम कल 10 o'clock स्टडी करेंगे। हालेलुया। इसके ऊपर भी और स्टडी करेंगे और सुबह इज़राइल की शिक्षा को हम कंटिन्यू करेंगे और इसको भी आगे और लेके चलेंगे ताकि ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए। तो मैं एक वचन देना चाहता हूँ प्रोवर्ब्स में से, नीति वचन, पंजाबी में उसे कहोतां दी किताब कहते हैं। सुनिए यहाँ पे, प्रोवर्ब 25th वर्स नंबर 14, Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain। क्या करता है? फॉल्स गिफ्ट की बोस्टिंग करता है कोई। किसकी ओर इशारा है यहाँ पे? सुने ध्यान से फिर। Whoso boasteth himself of a false gift is like cloud and wind without rain। क्लाउड के लिए वही वर्ड है यहाँ पे एनॉन, और विंड के लिए वर्ड है रूहाक, जो पवित्र आत्मा के लिए भी शब्द इस्तेमाल हुआ है। वो बिना रेन की है, फॉल्स फ्लैग है ये। जैसे कहें नाम बड़े और दर्शन छोटे। बारिश नहीं है, बोस्टिंग है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। समझ रहे आप हिब्रू का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है कैरिस्माटा, जिसका मतलब होता है वरदान, गिफ्ट्स होली स्पिरिट के, कैरिस्माटा। लेकिन हिब्रू वर्ड जो है खनान, जिसका मतलब होता है ग्रेस, अनुग्रह। तो कैरिस्माटा का मतलब क्या है? वरदान। वरदान के अंदर दान है, मतलब यहोवा ने आपके ऊपर उंडेला है, वरदान उंडेला है। क्या वरदान है? कि आप प्रार्थना करके दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हो, आप प्रार्थना करेंगे रोगी चंगे हो जाएंगे, आपके पास वरदान है शिक्षा देने का, आपके पास वरदान है नबूवत करने का। तो ये जो वरदान हैं ये किसने दिए हैं? परमेश्वर ने दिए हैं। व्यक्ति की, मेरी कोई योग्यता नहीं है वचन की शिक्षा देना, प्रार्थना करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, रोगियों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु के नाम में मौजे करना, ये मेरी अपनी काबिलियत नहीं है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। हालेलुया। जो किसी भी व्यक्ति के थ्रू काम करता है, और ये व्यक्ति की अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए नहीं दिया गया, उसकी अपनी मार्केटिंग करने के लिए नहीं दिए गए ये वरदान। ये वरदान दिए गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह की देह की सेवा की जाए। हालेलुया। तो इसमें वो बोस्ट नहीं कर सकता व्यक्ति। आपको मालूम, बहुत सारे लोग अपने नेचुरल टैलेंट से, उनके पास स्पिरिचुअल गिफ्टिंग हेवन से नहीं है, कोई नेचुरल टैलेंट है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेचुरल सिंगिंग का टैलेंट सीखा है, वो राग रागनियाँ सीखी हुई उन्होंने, वो गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि कई बार परमेश्वर, ऐसी मेरी समझ है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट परमेश्वर आपके नेचुरल गिफ्ट की प्रपोर्शन में भी दे देता है। कि आपके पास नेचुरल गिफ्ट है तो परमेश्वर स्पिरिचुअल गिफ्टिंग आपको दे के आपको यूज़ करे। तो प्रभु कहता है जिसको ज़्यादा दिया गया उससे ज़्यादा लिया भी जाएगा। तो प्रभु का वचन ये बताता है कि ये वरदान हमारी अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की देह की सेवा के लिए है। आप परख सकते हैं कि उन वरदानों को वो व्यक्ति किस दिशा में इस्तेमाल कर रहा है। बस ये देख के आपको समझ लग जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है जिसके पास ये वरदान है। हालेलुया। तो बोस्ट ना करें आप, हालेलुया, बल्कि ह्यूमन एबिलिटी, जो आप पढ़े लिखे हो, आपने बड़ी डिग्रीज़ की हैं, आपको बहुत ज्ञान है दुनिया का, बहुत समझ है, आपने साइकोलॉजी की है,
आप समझ लेते हो कई बातें। पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है आपने कॉमर्स पढ़ी, आप इकोनॉमी को समझ लेते हैं, थियोलॉजी पढ़ी है, आप थियोलॉजिकल बातों, कोई भी डिग्रीज आपने की हैं, उन्हें प्रभु के चरणों में कॉन्सिक्रेट कर दें। अपने नेचुरल टैलेंट को यहोवा के चरणों में कॉन्सिक्रेट करें ताकि यहोवा आपको इस्तेमाल करे। और उसका जो सेहरा है इधर मत बांधें, किसे दे दें? प्रभु के चरणों में दे दें। प्रभु क्या कहते हैं सुनिए, यीशु मसीह कहते हैं जब तुम सब कुछ कर लो तब ये कहना कि हम तो तेरे निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमारे से नहीं हुआ। कभी सुना आपने ये स्क्रिप्चर? वचन में है, पढ़िएगा। यीशु मसीह कहते हैं जब तुम सब कुछ कर लो तब ये कहना कि हे परमेश्वर हम तो तेरे निकम्मे वर्थलेस सर्वेंट्स हैं, हमें जो करना चाहिए था हमारे से नहीं हुआ। अब आप देखिए बहुत सारे प्रीचरों के बड़े बड़े बोल और यीशु मसीह की ये बोल क्या आपस में मेल खाते हैं? आपको मालूम प्रभु कितने हम्बल, मोजेस जो था ही हैड स्पीच इम्पेडिमेंट, मोजेस कुडंट स्पीक। जरमाया सेड आई कैन डू इट, आई कैंट हैंडल इट, मेरे बस का काम नहीं है। आपको मालूम हमारे देश में एक बड़ा अजीम खुदा का बंदा आया, विलियम कैरी। किसी समय विलियम कैरी ने, आपको मालूम 28 ऐसी वर्ल्ड क्लास इन्वेंशंस की हैं विलियम कैरी ने। विलियम कैरी जो था 5th ग्रेड पास था, कॉबलर था ब्रिटेन में, मोची का काम करता था छोटी सी दुकान में, जैसे खोखट कियोस्क बोलते हैं ना जैसे यूएस में, ऐसी दुकान में। तो कोई मिशनरी गया, ऐसे उसने ग्रीक न्यू टेस्टामेंट रखा था, ऐसे जूतियाँ बना रहा था, रिपेयर कर रहा था और बना रहा था, ऐसे ग्रीक न्यू टेस्टामेंट पढ़ रहा था। तो मिशनरी चाइडेड विद हिम, ही सेड यू अंडरस्टैंड ग्रीक, ही मॉक्ड एट हिम, ही रेड couple chapters from Greek New Testament and that the missionary was like awestruck। वहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई और उसने ब्रिटिश एजेंसीज को बोला मैं इंडिया में जाना चाहता हूँ सेवा करने के लिए। आपको मालूम उस समय 18th सेंचुरी की शुरुआत में विलियम कैरी को क्या बोला गया? ब्रिटेन की मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन ने विलियम कैरी को बोला आर यू ए मून स्ट्रक लुनेटिक, कि तू वहाँ जाना चाहता है जहाँ बारबेरियंस रहते हैं। वो हमारे देश में आया। ये जो हिंदी की बाइबल है ये विलियम कैरी की देन है। एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और ऑर्गेनिक खेती के अंदर बहुत सारा योगदान है विलियम कैरी का, जो क्रिश्चियनों को पता भी नहीं है। उसने कितना कुछ हमारे देश के लिए किया है और वो 5th ग्रेड पास था। जॉन बनियन जिसने क्लासिक मास्टरपीस लिखा पिलग्रिम प्रोग्रेस, एक बक्से के अंदर 14 साल उसे बंद किया गया था। आपको मालूम ही वॉज नॉट एजुकेटेड एट ऑल। जॉन बनियन, रीड पिलग्रिम प्रोग्रेस, ब्यूटीफुल बुक। स्मिथ बिगल्सवर्थ अनपढ़ व्यक्ति था, लोहार का काम करता था, खुदा के रूह ने उसे पकड़ा। हालेलुया। ये जो प्रोवर्ब 25:14 में लिखा है कि ये वो क्लाउड हैं जिनके अंदर विंड नहीं है, पवित्र आत्मा रूहा की विंड नहीं है और इनके अंदर पानी नहीं है, रेन नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की हजूरी नहीं है। हालेलुया। तो ये जो क्लाउड हैं, कल और इसके ऊपर हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। ये जैसे हाइड्रोजन होती है ना, जब क्लाउड्स के अंदर हाइड्रोजन बस्ट करने लगती तब रेन आती है। ये वो नहीं है भाई और बहनों, ये खुदा के खादिम लोग हैं, कामिल किए गए यहोवा के संत हैं, सच्चे लोग हैं खुदावंत। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम के अंदर घुसिए, परमेश्वर की हजूरी में घुसिए। ये एंड डेज़ हैं, बहुत सा धोखा हो रहा है, डिसेप्शन हो रही है आपके इर्द गिर्द। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसके अंदर मैं हिल गया कि सर्न के जो वैज्ञानिक हैं, सर्न जो जिनेवा में हैं, वो टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं। हाइड्रोन कोलाइडर उन्होंने बनाया गॉड पार्टिकल ढूंढने के लिए। वो जो डिमेंशनल रियलिटीज़ हैं उन्हें ब्रेक करना चाहते हैं। ये यूनिवर्स मल्टी डिमेंशनल है। आप जिस डिमेंशन में रह रहे हो, 3 डिमेंशनल दुनिया में, इसकी सीलिंग क्रैक करके अगली डिमेंशन में नहीं जा सकते आप। यहोवा ने इसे बंद किया हुआ है। तो सर्न के वैज्ञानिक ये सील क्रैक करना चाहते हैं
आपको मालूम उनका मैस्कॉट कौन है? नटराज, शंकर जो डांस कर रहे हैं, वो उनका मैस्कॉट है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो अबदोन है उसके अंदर से हमें नटराज को छुड़ाना है, वो वहाँ पे है, उसे ब्रेक करना है। और जो सबसे हिलाने वाली चीज़ मैं उस बुक में पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि वो टाइम ट्रैवल की मशीन तो बन चुकी है, लेकिन उसके द्वारा ट्रांस डिमेंशनली ट्रैवल करना चाहते हैं, और वो उस समय में जाना चाहते हैं जब मोजेज़ ये बुक लिख रहा है, जब प्रॉफिट ये बुक लिख रहे हैं, ताकि उस समय में पीछे जाके इस बुक को चेंज कर दिया जाए। अगर वो ट्रांस डिमेंशनली बैकवर्ड जाके टाइम्स को इंटरसेप्ट करके जब ये लिखी जा रही हैं बुक्स, उन खुदा के पवित्र संतों के द्वारा अगर उन लिखतों को चेंज कर देंगे तो पूरी दुनिया में जो बाइबल पड़ी हुई हैं ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ऐसी सैटेनिक स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। इलॉन मस्क के विषय में स्टडी कीजिएगा, सैटेलाइट ऊपर से क्या कर रहे हैं उसके विषय में स्टडी कीजिएगा, क्या क्या संसार के अंदर घट रहा है। विज्ञान और जादूगरी, अकल्टिज्म आपस में मिल रहे हैं ऐसे। और एंटी क्राइस्ट का अराइवल बिल्कुल थ्रेशहोल्ड पे है और चर्च सो रही है। चर्च के अंदर अभी भी जक्की चढ़ गया दरख्त पे, सारे बोलो हालेलुया, जक्की उतर गया दरख्त तो सारे बोलो हालेलुया, सारे नु जय मसीह की। भैया ये हालेलुया खोजें, इसको घुसें इसके अंदर। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु मैं हर एक प्रार्थना विनती को जो आज यहाँ लोगों ने भेजी है, यीशु मसीह इन प्रार्थना विनतियों को आपके आगे उठाता हूँ, आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावंद एक एक जन के लिए। प्रभु इनकी एक एक प्रार्थना विनती को आप स्वर्ग में स्वीकार करें। मैं आपके खून के साए के नीचे इन प्रार्थना विनतियों को लेकर आता हूँ। प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं एक एक जन के ऊपर, प्रभु जी अपने लहू में महफूज रखें। प्रभु जी इस वायरस के डंक से अपने लोगों को बचा के रखना, प्रभु अपने खून के साए के नीचे एक एक को आशीषित करना, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। कल सुबह 10 o'clock फिर मिलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की, आमीन।